So hello students, today we are going to discuss about relation and function that is related to class 12th. But before that we will understand or recapitulate many concepts that is related to 11th also. But here is a request from your teacher that whenever you are going to see that type of videos which are being played on the YouTube, you must have a pen and a register so that you will be able to write down all important things which is being spoken by the teacher. The first term is ordered pair. Ordered pair. Whenever we are talking about the ordered pair, we have to understand about the elements which are in pair. We have to understand about the elements which are in pair, where there is a comma between them and the parenthesis bracket has been done here. So this type of condition is known as ordered pair, and these ordered pair may be in group. ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, और जब ये ग्रुप में हो जाते हैं तो इन्हें हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो when we will discuss about the Cartesian product, so here is little bit explanation that must be done by us. Suppose here is a set A whose elements are A, B, C, and here is another set B whose elements are 1, 2, and we are supposed to find out A cross B. That A cross B or A multiple B will be known as Cartesian product, and it will be also the collection of ordered pair that will be found by these two sets A and B. What we have to do, we will make many ordered pair in such a way that here will be first element, second element, then again first element and second element. So first element will be belonging to A and the other element will be belonging to B. तो अगर मुझे ऐसा करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं A को लेकर अगर चलता हूं तो if one is A, other will be 1. If one is A, other may be 2. Then again, if one is B, then other again will be 1. Getting now? Then B comma 2. Then C comma 1, and then again C comma 2. This will be known as A cross B or A multiple B. That is known as Cartesian product if here are two non-empty sets A and B. So B comma 1, then B comma 2, then C comma 1, and then C comma 2. And this is known as A cross B. If we are discussing about B cross A, then what will be here? Now the first element will belonging to B and the second element will be belonging to A. Then it would be like this: 1 comma A, 1 comma B, and then 1 comma C. Same way for 2, here will be 3 elements. Then 2 comma A, 2 comma B, and 2 comma C. This is known as B cross A. So it is clear here that A cross B is not equal to B cross A. So this is known as Cartesian product. Then after understanding about the Cartesian product, we have to understand about the relation. So relation from A to B is nothing but the subset of A cross B. Same here, the relation from B to A is nothing but the subset of B cross A. Let's say how. If here is a element A that is equal to 2, 5, 9, and here is another set B, and here the numbers are 5, 6, 8. And if we will find out A cross B, we will find out A cross B. So that will be written as 2, 6, 2, 8, 5, 6, 5, 8, then 9, 6, 9, 8. This is known as
कार्टेशियन प्रोडक्ट. बट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, जैसे उसने बोला हमसे कि फाइंड रिलेशन फ्रॉम A to B, relation of A to B where R is equal to A cross B, where A is belonging to A and B is belonging to B and A is greater than B. A condition will be given for that. A cross B is completely whatever we can take it. But if here we need to find out the relation, so for finding the relation, a situation must be given for you. As it has been given, कि find the relation A to B, where A relation is equal to A comma B, where A is belonging to A and B is belonging to B. It means what? The first element will be belonging to A and second element will be belonging to B. And the situation is there that A is greater than B. A की वैल्यू B से बड़ी है. तो it means अब क्या होगा? When we are going to find out the relation, तो A should be greater than B. A should be greater than B means only these two will be taken. That first element is greater than second element. So this is 9,6 and 9,8. But if here will be B is greater than A, in that condition this will be taken, this will be taken, this will be taken, as well as this will be also taken. So there will be 4 elements on that. So I hope that you have understood that what is the meaning of the relation. So relation it will be the subset of A cross B. The relation is a subset of Cartesian product. I hope that it has been understood by you. And we must understand one thing, that 6 is the image of 9. I'm repeating myself that 6 is the image of 9 and 9 is a pre-image of 6. Understanding about the relation, we must have knowledge about one more thing, that is range, domain and codomain. Range, domain and codomain. So range is nothing. Range of a relation will be, तो जो इसमें रेंज होगी that is the second element will be known as range. So range of this will be what? 6,8. That is 6,8. If we will talk about the domain, so domain is nothing but the first element. First element will be known as domain. So it will be what? The first element of the relation, that is 9,9. It means only 9 is here. That is known as relation. So I hope domain and the range has been understood. Now here is a concept, codomain. So the all second element या all elements of B will be known as 6, all second elements कह सकते हो कि all elements of second set will be known as codomain if A is related to B. अगर A B से relation रखता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोडोमेन होता है that will be known as B. So codomain is what? All elements of B that are 6,8. So here we must know about the representation of range, domain and codomain. तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि that is इसको A, B के फॉर्म में लिखते हैं, तो if this type of questions are coming, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको लिखा जाता है. तो यहाँ पर हम लोग अगर रेंज की बात करनी है तो आप लिखते हैं रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट होता है तो B, that is B, such that A, B is belonging to R and which is the subset of A, B is belonging to R.
आपको ये ध्यान रखना है कि a कॉमा b किसको बिलोंग करते हैं, R को बिलोंग करते हैं। सेम वे अगर हम डोमेन की बात करें तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज नथिंग बट a such that a comma b is belonging to R, या a comma b is a subset of R. Same way it can be also written as a comma b is a subset of R. And same here, codomain will be set B, that is 6 comma 8. So what has been understood by us? Now after understanding about the domain, range and codomain of a function, a question which has come in the board examination 2014, we must discuss this question and how to solve this, that must be understood by us. So this is the solution. आप solution यहाँ पे लिखते हैं और इस solution में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको कि as relation is x comma y such that x plus 2y is equal to 8, where x comma y is belonging to natural number। कि x comma y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कोई सेट है वो किस पे है, किसी नेचुरल नंबर पे। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि a और b दो नंबर हैं, सेट थे, तो वो सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर का मतलब चाहे इमेज लें या प्री इमेज लें, अगर चाहे इमेज लें या प्री इमेज लें, दोनों ही किसको बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर को। यानी x एंड y बोथ आर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और साथ में इस सिचुएशन को भी उसको सेटिस्फाइड कराना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लूं तो कंसीडर करें, अगर हम इसको कंसीडरिंग x plus 2y is equal to 8, so if directly we will write it down, so it must be written as y is equal to 8 minus x upon 2. It means we have to take the value of x, for that we will get natural number y, that value we have to take in here. So when x is equal to 2, if you will take 1 is also non-natural number. If you will take 1, so that will be 8 minus 1, 7 upon 2. So you are going to get the fractional number, but here y should be also the natural number. So if x is equal to 2, then y will be written as 8 minus 2, that is 6 upon 2, which is 3. Same here, if x is equal to 4, क्योंकि 3 से मैंने फिर लागे है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो x will be also even number for satisfying the given condition. So if you will write it down here, so 8 minus 4 2 4, 8 minus 4 4 upon 2, so y will be equal to 2. If you will take x is equal to 6, so that will be 8 minus 6 2 upon 2, so y is equal to 1 is here. After that, if you will take x is equal to 8, so y will be 8 minus 8 0 upon 2, that will be also 0, so it won't be accepted. Why? Because here whole number is not given, natural number has been given. If whole number is given, so we will take that number also. लेकिन जब natural number की बात करता है तो up to here only we have to do, because after that whatever value of x will be taken, for that the value of y will be negative, that will be belonging to integer, not for the नेचुरल नंबर। तो उसको हम वहीं पे पॉज करते हैं। तो जो हमारे पास रिलेशन बन के आता है, व्हाट विल बी द रिलेशन विल बी 2,3, देन 4,2 एंड 6,1 विल बी हियर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना कि यही रिलेशन बनेगा, इसके अलावा कुछ नया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने देखा कि फॉर x is equal to 8 it is not satisfying the given condition. Now what we have to do, we have to find out domain, range as well as codomain. So domain of relation will be what? 2, 4 and 6. If we are talking about range, so range of relation will be second element, that is 3, 2,
comma 1 is here. If we'll talk about codomain, so this is codomain. So codomain of relation will be what? All elements of set P, and set P will be also the natural number. So we will say natural number or n. Getting? So now you have understood that how to find out domain, range and codomain. Even that question is belonging to 11th class, but actually this has come in board examination 2014. Relation of A, इसका मतलब ये होता है कि relation of A to A. जब भी हम आपसे कहें कि relation on A, relation on A, इसका मतलब क्या है कि relation of A to A, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन आएगा that will be the subset of the relation आएगा, सॉरी, जो रिलेशन आएगा that will be the subset of A cross A, वो A cross A का सबसेट ही होगा. यानी A और A, इधर भी A सेट उधर भी A सेट, उसको क्रॉस किया, ऑर्डर पेयर बनता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे. तो इस बार A और A का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और वो फिर जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन ऑन ए, इसे बोलते हैं हम लोग रिलेशन ऑन ए. तो इस बार हम लोग क्या सीखेंगे कि रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट पर पर्टिकुलर रिलेशन देखेंगे. तो हाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं. क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला रिलेशन हमारा आता है इसे हम वॉइड रिलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन. वॉइड रिलेशन इसको बोलिए, और एम्प्टी रिलेशन. ईदर यू विल से वॉइड रिलेशन और यू विल से एम्प्टी रिलेशन. इसका मतलब ये होगा कि एक भी एलिमेंट उसके अंदर होगा ही नहीं, उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. लेट्स से हाउ. एग्जांपल, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन, आई विल सेंड यू अ स्क्रीन और स्क्रीनशॉट और पिक्स ऑफ a definition. So you will write down these all definition and try to cram this, which it is very important to you. So void relation की बात करें, अगर मैंने मान लिया कि let A is equal to 3,4, A is equal to 3,4, ऐसा मैंने मान लिया. And after that I am saying कि रिलेशन आपको निकालना है, तो रिलेशन इज इक्वल टू A कॉमा B. रिलेशन इज इक्वल टू A कॉमा A. मैंने कुछ ऐसा मान लिया, रिलेशन इज इक्वल टू A कॉमा, ऐसे कर देते हैं, A कॉमा B, यानी A भी इसी से आएगा, B से भी इसी से आएगा, A कॉमा B विच इज बिलोंगिंग टू A. दोनों ही A से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब ये है दूसरी लैंग्वेज में कि A is belonging to A and B is also belonging to A and A minus B is equal to 0. क्या बोल दिया मैंने? A minus B is equal to 0. तो सॉरी बेटा, ये गलत लिख दिया. A minus B is equal to 0. Now you may observe here कि किसी भी कंडीशन में A minus B 0 नहीं आ रहा है. 0 कब आ रहा है? जब हम 3 minus 3 करेंगे तो 0 आए, है ना. तो ये चीज यहां पे गलत हो जाती है. ओके, जैसे मैंने यहां पे कह दिया आपको कि A माइनस बी इज इक्वल टू 6. क्या कह दिया मैंने? A माइनस बी इज इक्वल टू 6. तो अब आप देखो कि A माइनस बी इज इक्वल टू 6 कहां से आ सकता है? अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, और 3 माइनस 3 करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, और 4 माइनस 4 करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा. यानी आप देख रहे हो, आप चाहे जितने भी फॉर्मेट बनाओ, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 4 आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स आएंगे,
लेकिन आप देख रहे हो कि एक भी जो है इस कंडीशन को बिलोंग नहीं करता है, तो यानी ऐसे माना जाएगा कि ये वॉइड रिलेशन है या एम्प्टी रिलेशन है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ऐसे रिलेशन को ही वॉइड रिलेशन बोलते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज नहीं होती। वॉइड रिलेशन के बाद सेकेंड पार्ट हमारा आता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट every element of a relation, every element of a set is related to all the elements। कोई भी एलिमेंट है सेट का, वो सबके साथ रिलेशन बना रहा हो। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, परेशान ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाने वाला है। अगर मैंने ले लिया कि कोई सेट है ए और जो कि है 3, 4, 5। अब आप रिलेशन निकालने जा रहे हो, रिलेशन ऑन ए पे रिलेशन निकालने जा रहे हो, तो ऐसे मैं अगर इसको बोलूं कि फाइंड आउट द रिलेशन ऑन ए सच दैट रिलेशन इज ए कॉमा बी, रिलेशन इज ए कॉमा बी एंड ए प्लस बी इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इट मींस क्या हो रहा है, और मेरा मन हुआ और टफ बनाने का, तो मैंने बोल दिया फाइंड आउट द रिलेशन ए कॉमा बी वेयर a minus b of mod of a minus b is greater than is equal to 0, is greater than is equal to 0। तो जब आप मॉड निकालते हो किसी भी चीज का, तो ये बात पक्की है कि वो या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, छोटा तो नहीं आएगा। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में a की आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 3 - 3 करोगे 0 आएगा, 3 - 4 करोगे -1 आएगा, उसका पॉजिटिव करोगे तो जो भी आएगा वो 0 से ग्रेटर आएगा, प्लस करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। तो आप देख लो सारी सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में दिस रिलेशन और दिस रिलेशन बोथ विल बी नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। So if we talk about the identity relation, so we must understand one thing, that identity relation is a relation on a set. Identity relation is a relation on a set in which each element is related to itself only. हर एलिमेंट केवल अपने ही आप से रिलेशन बनाएगा, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से आपके लिए। मैंने आपसे बोल दिया एक एलिमेंट है ए, we have to find out the relation on A। एक एलिमेंट A है और जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है 1, 2, 3, या चलो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ और करते हैं, A, B, C कर देते हैं, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि here is a relation R in such a way that X, Y where X and Y are belonging to A। इट मीन्स पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही ए को बिलोंग करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और साथ में एक चीज और है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब जब a माइनस बी करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट 0। जब a माइनस ए करेंगे तभी 0 आएगा, b माइनस बी करेंगे तभी 0 आएगा, c माइनस सी करेंगे तभी 0 आएगा। यानी एक सिचुएशन क्लियर हो गई कि जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो या तो a कॉमा ए होगा, या तो b कॉमा बी होगा, या तो c कॉमा सी होगा। क्यों? क्योंकि वो यहां पर हमको एक ऐसी सिचुएशन चाहिए वेयर द डिफरेंस इज इक्वल टू 0, जहां पर डिफरेंस हमारा 0 हो। और ऐसी सिचुएशन में आप देख लो कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेशन बना रहा है, और ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। Here is a too much confusion about identity relation as well as reflexive relation. Reflexive relation. Relation.
कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ ओनली नहीं है, इसमें क्या था, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसमें क्या था, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या था, इट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद से ही रिलेशन बना है। लेकिन यहां पर क्या है कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इट मीन्स नो ओनली, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना जरूरी। किसी दूसरे के साथ बनाता है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा खुद से रिलेशन जरूर होना चाहिए। दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन आते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे कम समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि ए एक कलेक्शन है सेट का, ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ए जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। और ऐसी कंडीशन पे ए किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो मैंने बोल दिया कि रिलेशन इस तरीके से है कि ए कॉमा बी, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या हो रही है, ए कॉमा बी, और यहां पे एक सिचुएशन और बन रही है, एंड ए माइनस बी, क्या बोल रहा हूं मैं, ए माइनस बी इज बिलोंगिंग टू ए। यानी जो a माइनस बी आएगा, जो भी a माइनस बी आएगा, दैट विल बी ऑल्सो a। इट मीन्स दैट विल बी ऑल्सो अ रियल नंबर। तो मुझे अच्छे से पता है कि दो कोई भी रियल नंबर उठा लो, 2 उठा लो, √2 उठा लो, दोनों का डिफरेंस निकालो 2 माइनस √2, या उल्टा कर लो √2 माइनस 2। ऐसी कंडीशन में वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज रियल नंबर। इसका मतलब ए का रिलेशन ए से होगा, बी का रिलेशन बी से होगा, सी का रिलेशन सी से होगा, एक्स दूसरे से भी होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद से रिलेशन तो होगा ही होगा। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में एक चीज आप ध्यान रखो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है राकेश, तो पवन इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश एंड राकेश इज अ फ्रेंड ऑफ पवन। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं दूसरा रिलेशन बोलूं, जैसे मैंने बोला कि पवन इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चीज समझ में आ रही है कि इफ पवन इज फ्रेंड ऑफ राकेश, तो राकेश इज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ पवन। या मैंने बोल दिया कि रोहित एंड सोहन आर ब्रदर, मैंने बोल दिया रोहित कॉमा सोहन आर ब्रदर, तो इसका मतलब ये बात भी पक्की है कि सोहन कॉमा रोहित इज ऑल्सो द ब्रदर। तो ये भी हमारा किसमें, सिमेट्रिक की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि पवन इज द हस्बैंड ऑफ राधा, तो ये आपका सिमेट्रिक पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब मैंने बोला कि पवन और राधा क्या है, एक रिलेशन बना रहे हैं जहां पर पवन साहब जो है इज हस्बैंड ऑफ राधा, तो ये बात पक्की है कि इसका रिवर्स नहीं हो सकता, राधा कॉमा पवन नहीं हो सकता, क्योंकि राधा इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ पवन, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने यहां पे लिखा इफ r इज इक्वल टू 1,2, 2,3, 3,2 और आपसे पूछा
कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक रिलेशन? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि 1,2 के लिए 2,1 आना जरूरी था। जैसे कि यहाँ पे 2,3 है तो 3,2 है। लेकिन अगर यहां पर यहीं पर हम क्या करें कि आगे अगर हम इसको लिख देते हैं 2,1, तो as soon as I will write down here 2,1, now the new relation which has been generated that is symmetric relation। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1,2 के लिए 2,1 भी है और 2,3 के लिए 3,2 भी है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि for symmetric relation for symmetric relation, if x comma y is belonging to R, if x comma y is belonging to R, that implies y comma x should also belongs to R। अगर ऐसा है, जब भी प्रूफ करना होता है तब भी ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर x कॉमा y R को बिलोंग कर रहे हैं तो y कॉमा x शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तभी हम इसको सिमेट्री की कंडीशन में मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। चलो एक एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया हमने, मैंने बोल दिया कि चेक रिलेशन x comma y where x is equal to y has been given। x is equal to y is सिमेट्रिक और नॉट। शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये x कॉमा y जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। सॉल्यूशन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, वे क्या है, क्योंकि सबसे टफ काम इसलिए समझ में तो आ गया ये भाई यहाँ क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, बट इफ द क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जामिनेशन तो हाउ टू सॉल्व दिस दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय मी। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना है कि फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन if x comma y is belonging to R, then y comma x should also belongs to R। अगर ऐसा है तो ही रिलेशन सिमेट्रिक माना जाएगा, वो आपने लिखा। तो ये तो आपने सिचुएशन बता दी कि यस आई एम गोइंग टू डू सो, ये मुझे करना है। अब इसको करना जाना है तो पहले एक को आपको लेट करना पड़ेगा। तो लेट x comma y is belonging to R। तो ये बात पक्की है कि अगर x, y R को बिलोंग कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि x y के इक्वल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू y हो जाएगा। अच्छा मुद्दा समझना, ये तो हमने लेट किया है और ये लाना है। अगर ये आ गया तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा ये कब आएगा? ये तभी पॉसिबल है इफ y इज इक्वल टू x। ये तभी पॉसिबल है जब y इज इक्वल टू x हो, क्योंकि रिलेशन ही वही बता रहा है कि रिलेशन ये तब माना जाएगा कि अगर पहला फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कैन वी राइट डाउन y इक्वल टू x। तो भाई हमने यहां पे लिख दिया कि y इज इक्वल टू x एंड एज सून एज y इज इक्वल टू x हैज बीन रिटन, सो वी कैन से व्हाट कि x इज बिलोंगिंग टू x, y, यानी हम कह सकते हैं कि y, x इज आल्सो बिलोंगिंग टू R। अभी आपने देखा कि x, y R को बिलोंग कर रहा है और y, R भी x को बिलोंग कर रहा है। Therefore R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, x, y भी होने वाला है और y, x भी होने वाला है। Whether you will write down this statement or not, we don't have any problem। और फाइनली हम लास्ट में ये लिख देंगे कि so we can say that कि रिलेशन x, y that where x is equal to y is symmetric relation। I hope it has been understood by you। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। आफ्टर तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में। तो जैसे अभी हमने देखा, सबसे पहले एक बार रिवीजन मार लेते फिर से। सबसे पहले हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि वो सेम एलिमेंट से उसका रिलेशन होता है, यानी a, a का सेट बनना चाहिए। यानी अगर 1, 2 किसी रिलेशन में है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 1, 1 है
तो 1,2 कहीं गिवन है और 1,1 है और 2,2 नहीं है, तो रिफ्लेक्शन में नहीं आएगा। अगर 1,1 है तो 2,2 भी होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स ओन इमेज, उसकी खुद की वही इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स ओन इमेज एज इटसेल्फ, खुद ही उसकी वही इमेज होनी चाहिए, दूसरी कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमने सीखा दूसरी चीज, क्या सीखी थी, अभी ताजी सीखी, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हमने सीखा, इसमें ध्यान रखना मिरर इमेज बनती, क्या बनती है, मिरर इमेज बनती। जैसे कि 1 2 तो फिर क्या होना चाहिए 2 1, बीच में मिरर, ठीक है। तो इसमें मिरर इमेज बननी है। तो उसमें हमने बताया कि इफ x, y is belonging to R, then y, x must also belongs to R for being the symmetric relation. I hope this has been understand by us. Now we are going to learn about सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बातें आज हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे दो बहुत ही प्यारी सिचुएशन आ रही हैं और इन दोनों को समझना, क्वेश्चन बाद में, कंडीशन बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं। मान लो एक रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया 1,2 1,3 2,3 एंड 5,7। एक और रिलेशन मैंने आपको दिया 3,4 6,8 4,5। एक और रिलेशन मैंने आपको दिया A, B, B, C, C, D, A, C। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर 1,2 है, अच्छा 1,3 है, कोई बात नहीं, 1,2 है, 2,3 है, यानी इसका जो ध्यान रखना, ये क्या है, प्री इमेज, ये क्या है, इमेज। तो ये इमेज हो गई, ये इमेज हो गई। तो अब यही इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। तो ये जो रेंज है वो फिर से देखो डोमेन बन गई, तो एक नई रेंज तैयार हो गई, हो रही है। यानी क्या हो रहा है कि पहले वाले का दूसरा, फिर दूसरे वाले का तीसरा, और फिर एक पहला और तीसरा। यानी क्या है कि इसका रिलेशन इसके साथ हो रहा है, फिर बाकी जो बचा 1,3 वो भी यहां पे अवेलेबल है। बात समझ में आई। अगर एक सेट की इमेज दूसरे में है, एक सेट का जो डोमेन है वो दूसरे वाले का रेंज है, एक सेट का जो डोमेन है वो दूसरे वाले का रेंज है। अब जो उसके बाद बचे हैं वो एक नया सेट बना रहे हैं, यानी फर्स्ट और 3 एलिमेंट दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि आपके पास 1,2 भी है, 2,3 भी है, और उसके बाद 1,3 भी है। तो सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसकी ये जो रेंज है बाद में ये क्या बन गया है आपका डोमेन, और फिर एक नई रेंज आ गई है आपकी, नई रेंज आ गई। अब वो नई रेंज और एक पहले वाला डोमेन एक नया अगर सेट और तैयार कर देते हैं। यानी अगर A, B है, यानी सिचुएशन क्या बनी हमारे लिए, पहली कंडीशन पे हम लोग लेते हैं कि इफ A, B is belonging to R, B, C is belonging to R, then A, C is also belonging to R। ये होना जरूरी है। इफ अगर ऐसा है, ये और ये दोनों चीजें हैं, उसके बाद अगर ये आ रहा है तो होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर वो उसमें कंडीशन में, ट्रांजिटिव की कंडीशन में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना कि इफ A, B is belonging to relation, B, C is belonging to relation, आप देखो इसका रेंज, इसका डोमेन बन रहा है ना, then A, C must be the part of that relation. If it is here, only then it will be transitive relation or it won't be a
ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया बात है, तो आपने समझ में आ गया। और उसके बाद एक बच गया 5,7 और ऑब्वियसली बात ये इसका पार्ट नहीं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मैं थोड़ी सी शरारत करके इसको 3,7 कर देता, तो फिर देखो 2,3 3,7, तो वी मस्ट हैव 2,7। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसके लिए तो बन रहा था ट्रांजिटिव, लेकिन एक दूसरा नया पेयर तैयार हो गया, वो वहां पे नहीं है, इसलिए वो ट्रांजिटिव कैटेगरी पे नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप बगल में एक और एलिमेंट लिख देंगे 2,7, तो आप देखो इसका इसके साथ और फिर लास्ट में ये 1 2 3 1 2 3 ये एक सेट बन गया। 1,2 2,3 और ये 1,3 एक ये सेट बन गया। फिर आगे देखो 2,3 3,7 दूसरा पार्ट एंड देन 2,7 थर्ड पार्ट, ये भी बन गया। तो इस तरह की अगर ग्रुपिंग बन रही है देन इट विल बी नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3,4 है, 6,8 है, 4,5 है। हर रिलेशन अब यहां पर देखो 3,4 है, 4 के साथ क्या आ रहा है, अब यहां पे जो डोमेन है वो अगले वाले की रेंज बन रही 4,5, लेकिन इसके बाद 3,5 इज नॉट अवेलेबल। इफ 3,5 वुड बी अवेलेबल देन इट इज ट्रांजिटिव, लेकिन 3,5 यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर यहां पर आप कहीं 3,5 लिख देते तो ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता, जो कि अभी नहीं था फिलहाल। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इफ की कंडीशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C, C, D, A, C। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है कि A, B के साथ B, C है। अच्छा ठीक बात है। फिर अगर A, C कहीं मिल जाए जो कि यहां दिख रहा है, तो यस ये ट्रांजिटिव है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे रखूं, A, B ये हो गया, C, D ये हो गया, और यहां पर मैं ले लूं E, F ऐसे रखूं। अब आप जरा ध्यान से इसको देखें, तो A भी यहां पर है, लेकिन इसका वाला जो रेंज है वो कहीं भी डोमेन का काम नहीं कर रहा है। इसी तरह इसका वाला जो रेंज है वो कहीं भी डोमेन का काम नहीं कर रहा है। इट मींस इफ एवरी ऑर्डर पेयर, if the elements of every order pair is different, in that condition it will be also transitive relation। यानी क्या कह रहा है कि अगर रिलेशन बने तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बने, और अगर नहीं बन रहा है तो अगर पूरी तरह से सेपरेटली है तब भी उसे ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी पे ही माना जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझते हैं जिससे ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक चीज पक्की हो गई है कि अगर A, B है, B, C है, दोनों सिचुएशन है, ये सिचुएशन एंड ये सिचुएशन। इफ दिस एंड दिस अवेलेबल देन इट मस्ट बी अवेलेबल। इफ दिस इज satisfying the situation, only then we will be able to say that this is transitive relation. If it is not, each element is different, then also it will be transitive relation. So I hope you have understood this one. A, B. R is equal to A, B, where A is equal to B. A किसके इक्वल है? B के इक्वल है। Is transitive or not? Is transitive और ट्रांजिटिव है या नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने पहले उसके लिए डिस्कस किया था, सिमेट्रिक के लिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने इसके लिए सॉल्व किया। तो हमने क्या सॉल्व करने जा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, तो सॉल्यूशन तो वही फॉर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, फॉर transitive relation, if A, B, ऑब्वियसली बात है सेट तो बनाना ही पड़ेगा। if A, B is belonging to R and
B comma C is belonging to R, then A comma C should also belongs to R. R को इसको बिलोंग करना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर पाए, इफ आई एम एबल टू प्रूव दिस, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो करते हैं कैसे। तो लेट A comma B is belonging to R. That implies अगर A comma B R को बिलोंग कर रहा है तो A is equal to क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो A is equal to हमने कर दिया B। होगा कि नहीं होगा? Let's say this is the equation number 1। दो इक्वेशन लेनी है, सेम वे अब दूसरी वाली उठाते हैं एंड लेट B कॉमा C इज बिलोंगिंग टू R। अब अगर B कॉमा C R को बिलोंग कर रहा है तो हम यहां से और क्या कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू C। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो दैट इंप्लाइज A इज इक्वल टू C। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम पहली और दूसरी दोनों पोजीशन को ले लेते हैं तो वो हमें पता लग जाता है कि A इज इक्वल टू सी। अब इफ A इज इक्वल टू सी, अगर A C के इक्वल है, इफ A इज इक्वल टू C, देन वी कैन से दैट A कॉमा B इज बिलोंगिंग टू R। तो इट मींस इफ A कॉमा C, A इज इक्वल टू C, देन हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि A कॉमा C इज बिलोंगिंग टू R। सो रिलेशन A कॉमा B where A is equal to B is transitive relation। Transitive A कॉमा B ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। अच्छा एक बात और पक्की है, देखो ट्रांजिटिव भी ये हो गया, उससे पहले मैंने सिमेट्रिक भी मान लो इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। अब आपसे कभी कभी प्रूव करने को कहते हैं कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। तो आपने देख लिया कि ये सिमेट्रिक तो था, ट्रांजिटिव तो था, उसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया जिसमें वो सिमेट्रिक तो था। अब अगर किसी तरह से आप ये प्रूव कर लो कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, जो कि हमें दिख रहा है कि अगर ए बी के इक्वल है यानी ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी, दोनों सेम ही है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव के लिए भी काम कर रही है, सिमेट्रिक के लिए भी काम कर रही है और ट्रांजिटिव के लिए काम कर रही है, इट मींस इफ अ गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric as well as transitive, so this type of relation will be known as equivalence relation। ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। सो विद द हेल्प ऑफ this you will be able to do। now in my next video I will tell you that how to solve the sums that is related to these all types of relation। if you like my video, please like it, share it, as well as subscribe, say to your friends that they can also follow the same things, and if you will do so definitely it is going to make me motivated to make more and more video for you। thank you, bye bye। Hello friends, today we are going to discuss about relation and function, but before that this is a request from your teacher's side that you must have a pen and register while you are watching this video। whenever the important things is being delivered by me, just pause the video, note down all the things whatever is necessary for you, try to do the systematic sums for this। as soon as the lecture will be over, you have to try to solve the questions that is related to related lecture, only then you will be able to utilize this। thank you।